हो जाए ढीला ढीला लगाओ भट्टी। No question today basically. So either laughing or sitting silently. Dear Swamiji, I am constipated and have a lot of stomach pain. Pills help only a little. I feel depressed and it is a great effort to leave my room. I don't want to go back to talking, smiling, saying good morning, etc. But I don't like what is happening either. Trying not to do, to just be. But everything is awful. Have you any advice for me? Yes. Only one day more. Everything will be all right day after tomorrow. You will be free. To be or not to be. So just one day more. Everything is just perfect. Just perfect whatsoever is happening. Even constipation. You know why constipation? Constipation means we want to hold back. What we have, whatsoever we have, whatsoever. Because we hold back, that is why there is a stomach pain. We don't let go. Because of old conditioning, old habits. And old habits, old conditioning always persist. And when there is a constipation and pain, one is going to be depressed. So everything is just perfect. Oh yeah? It is a staircase. One thing, then the other, then the other. I feel depressed. I told you that day, don't attach I. Recondition yourself or uncondition yourself. Actually, there is no deconditioning. It is only reconditioning. You can replace. You cannot leave the space empty. So first thing, recondition. Don't attach I. Feel depressed. Does not matter.
You cannot avoid feeling. But why to say I feel? Why you identify with it, depression? Just remember, don't bring I to anything. Remain aloof. So this will be a new conditioning. Call it if you like. Does not matter. Don't attach I. I feel depressed. No. You cannot feel depressed. You can witness depression. When you attach I, you identify. When you remain as a witness, there is everything, but you are not it. And slowly you will see it will not affect you. You will be out of the effect of depression or whatsoever. And it is a great effort to leave my room. There is no need to leave the room. It was totally beautiful when you were in the room. That is what is basically needed. Because you people cannot live in the room, that is why I made it juicy. Otherwise one is always in the room. He cannot leave basically for 21 days. So you are doing great in that sense. And even for one day if you have done it is also great. In one day people get punctured. Even one day is too much for many people. I feel depressed and you sent to me a letter yesterday and that was totally beautiful to be in the room. And tomorrow is our last day for the silence. Again we will be in a mood of celebration. Many new things. I don't want to go back to talking. That is very good. Chamandev, really good. You are getting the point, at least intuitively. Your being is getting the point. But the conscious mind comes and translates in a different way. Smiling, saying good morning. You are getting the point. But I don't like what is happening either. Again, I don't like. When you say I, what do you mean? Nothing. You don't know the I. It is mind which is made of liking and disliking. That's all. Either it likes or it dislikes. It cannot remain silent and watcher and witnessing. But I can remain. Actually, when there is a witnessing, there is no I at all. In the real case. What is happening either, trying not to do. Don't try. I told you not to do. Don't try anything. Trying creates constipation. Trying creates tension. You are in a big war. Just try to understand. You are quite intelligent. If you can just understand, there is nothing to do. Nothing to do. Just understanding is enough because we are unable to understand. That is why we try so many things. And people make money. They invent 1,000 groups. There is no need. If you just understand. In the beginning, because you don't know anything else, in the beginning, it looks like trying. It looks like effort, but it is not actually. And soon you will be cycling very fast without any trying. In the beginning, it looks like trying because one is not habitual at all.
When it becomes a habit, it goes in the moving center. Then you just are. Because now you cannot be, because of there is no habit. So create a new habit to be. And you will see you slip very fast. Again, you have to be. So in this process, you notice that you are trying something. In a way, yes. But try. In this sense, you go on trying. Don't leave. Until it becomes a natural thing. Soon you will see, but everything is awful. It will be blissful. In the beginning, things are awful. Yesterday you were not here, and I was telling my story, how I started drinking beer. And it was really awful. I started with with one spoon, then 2 spoon, 4 spoon, then half glass, then full glass, then full bottle. Then there was a demand. Let us have beer today. So you will see it will become a beer. In the beginning it is awful. But then it is very joyous. It makes happy. And have you any advice for me? Just one day more. Wait one day more, that's all. Again smiling, saying good morning, etc. Talking. That will begin. But slowly, slowly. Not fast. We will be talking, we will be saying good morning to each other, smiling at each other, maybe so many other things. Beloved Swamiji, what a wonderful insight you shared with us yesterday. What I shared with you, I forgot. And you have not written what I shared. I reach to my hut, I forget everything. Then sometime I ask what I spoke today. You shared with us yesterday, now nothing is an enemy to the peace. Nothing is a distraction to meditation. Everything reminds me, I am. How blessed I am. स्वामी जी की हो जाए. स्वामी जी की क्यों हो जाए भाई? ओ स्वामी जी की जय हो जाए. नहीं हो जाए. Thy will be done. Demand draft. अति सुंदर. राजकुमार बहुत सुंदर. अब नमन तुम्हें मन करता है. सुनना जरा गौर से, जो हिंदी समझते हैं. अब नमन तुम्हें मन करता है, यूं समझो तुम पर मरता है. तुम दाता हो, मैं याचक हूं, अपने भावों का वाचक हूं. तुम दाता हो, मैं याचक हूं, अपने भावों का वाचक हूं. तुम बिन बादल की वर्षा हो, फिर भी जो मुझ में तृषा हो, तो उसको कौन बुझा सकता, अगर मैं पीने को नहीं झुकता. तुम बिन बादल की वर्षा हो, फिर भी जो मुझ में तृषा हो, तो उसको कौन बुझा सकता, अगर मैं पीने को नहीं झुकता. तुम मालिक हो, तुम दानी हो, मैं अभिमानी, तुम ज्ञानी हो. तुम ही हो मेरा मौन प्रभु. तुम ही हो मेरा मौन प्रभु, और तुम ही मेरी वाणी हो. कोई सीखे तो तुमसे सीखे, जो प्रीत की रीत निभानी हो. इस राज का है अंदाज यही, तुम इसकी प्रेम निशानी हो. गुड. आ जाए. पुनश्च PS. दाता मेरे घट प्रगट
कर घर उजियारा। दाता मेरे घट प्रगट कर घर उजियारा, मिट जाए सकल कलेश वेश हो जैसा थारा। मिट जाए सकल कलेश वेश हो जैसा थारा, बहे मन में स्वच्छ समीर नीर बने खीर हमारा। नैनों में उमड़े मेघ वेग से बरसे धारा। ना शेष बचे अवशेष जो तेरे देश रहूं मैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ना शेष बचे अवशेष जो तेरे देश रहूं मैं, तज तुच्छ निज का भाव परम की शरण गहूं मैं। तज तुच्छ निज का भाव परम की शरण गहूं मैं से हूं से है से नहीं कर डारो। मैं से हूं से है से नहीं कर डारो। माया की छाया मिटे मिटे गहन अंधियारो। रख लाज मेरी प्रभु आज ताज तेरे सिर सोए। रख लाज मेरी प्रभु आज ताज तेरे सिर सोहे। कहे राज सुनो महाराज नाज है तुम पर मोर। यस यस करेक्ट राइट। रख लाज मेरी प्रभु आज ताज तेरे सिर सोए। कहे राज सुनो महाराज नाज है तुम पर मोहे। राजकुमार ने लिख के भेजा है। राजकुमार को देख के ऐसे तो कोई भी डर जाएगा, लेकिन हृदय बड़ा कोमल है, भावों से ओतप्रोत है और अति सुंदर और स्वस्थ और स्वच्छ भाव। ये भी एक मार्ग है। ये मार्ग आंसुओं का है, ये भक्ति का है। ऐसे भी व्यक्ति की चित्त शुद्धि होती है, भाव शुद्धि होती है। कोई जरूरी नहीं है कि रेचन रो रो के भी होती है, पर हकीकत ये है कि आंसुओं से और तीव्रता से होती है। अपनी कमी देखना, कमी महसूस करना, अंधियारा महसूस करना, अज्ञान महसूस करना, भटकाव महसूस करना और प्रार्थना से भरते जाना कि हे प्रभु कुछ करो। एक असमर्थता, उसके साथ साथ समर्पण का भाव। अंततः तो सारी बात समर्पण से ही घटती है, लेकिन भक्त जो है वो उसी को पहले से साधन बना लेता है। जिसको ध्यानी अंत पे कर पाता है, पक्का नहीं कर पाता है, अटक जाता है। अटकने की पूरी सुविधा वहां पर होती है, अंत में आके अटकने की। भक्त जहां पे जाके अटकता शुरू कर देता है। यात्रा फिर भी है, यात्रा फिर भी है। समर्पण करने के बाद भी 5 साल 10 साल 20 साल लग सकते हैं, या 108 जन्म मैक्सिमम, वो तब भी हो सकता है। लेकिन पहले से ही ठीक मार्ग पकड़ लिया, अंत में जो अटकाव की संभावना थी वो गई। क्योंकि जो व्यक्ति रो रहा है, जो व्यक्ति समर्पित है, जो हर वक्त असहाय है। एक यूजी कृष्णमूर्ति हैं, मैंने ही कई बार उनका नाम लिया। अब तो उनकी उम्र 90 से भी ज्यादा होगी। सारी दुनिया घूमते रहते हैं यहां से वहां। अद्भुत उनकी दृष्टि है, बहुत अलग दृष्टि है। वो एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि देयर इज नो वे आउट। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये उनकी खास पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। उनकी एक किताब है, उसका नाम है नो वे आउट। ये उनका कहना है, और बात अपने आप में सही हो जाए। सब बातें अपनी। वो कहते हैं कि तुम एक ही चीज कर सकते हो तुम्हारी तरफ से,
फिर इसको भी काट के फेंक देते हैं, कहते हैं कि वो भी तुम नहीं कर सकते। माने असहाय होना कोई चेष्टा नहीं हो सकती, उनके कहने का भाव ये। कहते वो ये है कहीं ना कहीं, और जरा भी आप पकड़ने की कोशिश करो तो उड़ा, उनके पास बैठ के आपकी खोपड़ी चल ही नहीं सकती, खोपड़ी काट के सीधी फेंक देते हैं। अब यही उनका तरीका है। गुरु अपने आप को वो कहते नहीं, शिष्य कोई बनाते नहीं, कोई आश्रम है नहीं, कोई कम्यून है नहीं, फिर भी लोग उनके प्रेम में पहुंच जाते हैं। पता लगे, अब मान लो मेरे को पता लगे कि आए हुए बेंगलोर, तो मैं भी चला जाऊंगा। सब पता कि उन्होंने क्या कहना है, सब सुना हुआ है, उससे कोई उनकी बातें बहुत थोड़ी सी, लेकिन फिर भी चला जाऊंगा। तो क्यों चला जाऊंगा? अब ये बेबूझ बात है। वही बेबूझ बात किसी मायने में तुम कह रहे हो। प्रेम का रिश्ता, गुरु शिष्य का रिश्ता, भले ये शब्द ऊपर हो या ना हो, अब उनके जो प्रेमी हैं वो डिसाइपल बनाते नहीं, डिसाइपल उनको गुरु मानते नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो गुरु रहते हैं और बाकी शिष्य रहते हैं। अब नाम आप ना चिपकाओ, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाई, उसके ऊपर लेबल नहीं लगाया, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं चिपकाई, अनाम रख दिया, लेकिन माल तो है ना अंदर, प्रोडक्ट तो है। तो बहुत ना, अब आप हैरान हो गए। वो कहते हैं उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और भागो यहां से, क्या कर रहे हो यहां पर? कुल बात वो ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम लकी हो और उसकी कृपा हो गई और आके धक्का मार दिया तो मार दिया, फिर हो गया काम। अगर तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। अब भक्ति का सारा मार्ग यही है। अगर सच में भक्ति का कोई मार्ग है तो वो यही मार्ग है कि आदमी वो जानता है कि मेरे किए से कुछ होना नहीं, तेरी मर्जी होगी तो तू कर, तो वो उसकी रजा में जीने लगता है, समर्पण भाव से जीने लगता है। आंसू उसकी आंखों का गहना हो जाते हैं। एक बुल्ले शाह का बड़ा अच्छा गीत है, वो गीत है असा मुंह, सुनना जरा, मूड में हूं आज मैं भी, हो जाए। बुल्ले शाह को गुरु ने भगा दिया, सीधा कह दिया कि जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। इतनी चोट कर दी। पंडित था, पढ़ा लिखा व्यक्ति, समाज में प्रतिष्ठित, धनी, भाई बहनों वाला, परिवार वाला, नामी व्यक्ति। इतना ही नहीं, सिद्ध भी था, उसके पास सिद्धियां थी बहुत सारी। जब गुरु को पहली बार मिलने गया बुल्ले शाह, तो उनके जो गुरु थे वो माली थे। वो अपना क्यारी बना रहे थे, उसमें वो पनीरी लगा रहे थे, उसको पनीरी कहते हैं। पनीरी का मतलब होता है कि जैसे ये चावल है, पहले कहीं उगा लेते हैं, फिर वो निकाल के अलग अलग करते रहते हैं, तो ऐसे पनीरी उसकी लगा रहे थे। उनका मुंह उधर था, बुल्ले शाह इधर खड़ा था, इधर रास्ता था। तो अपनी ताकत से, ऊपर आम का पेड़ था, अपनी ताकत से आम को घूरा और आम नीचे गिरा। तो गुरु का ध्यान मेरी तरफ जाए करके उन्होंने ये किया। वो जैसे ही आम गिरा, मुड़ के देखा तो खड़ा है। और यही बुल्ले शाह चाहते थे कि मेरी तरफ देखे मेरा गुरु। अभी गुरु नहीं बने थे, अभी ये पहला दृश्य चल रहा है। तो जैसे देखा तो एकदम से गुरु ने देखा, हिनायत खां उनका नाम था। तो बोले क्या चाहता है? तो कहता है आपके चरणों में जगह चाहता हूं, झुक गया चरणों में। यही शब्द है कि आपके चरणों में जगह मिल जाए। तो बुल्ले को पकड़ के उन्होंने दोनों कंधे से उठाया कि नीचे क्या देखता है, ऊपर देख। नीचे क्या देख रहा है, ऊपर देख, क्योंकि वो झुका पैरों में। अभी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी सांकेतिक हैं और बड़ी अर्थपूर्ण है।
और बस गया गुरु के हृदय में बुल्ले शाह। फिर चला, खेल चला प्यार का। एक बार उनके शादी थी घर में, बुल्ले शाह के घर में शादी थी। भाई बहन पूरा परिवार बुल्ले शाह के खिलाफ कि क्या बदनामी करवा रहा है हमारा, तू इतने ऊंचे खानदान का है और तू उस माली के पास जाता है, नीच जाति के पास। वो छोटा आदमी है, ना उसके पास पहनने को है, ना ओढ़ने को है, ना रहने को है, वो है कौन? और बुल्ले शाह कहता था कि मेरे गुरु को जो गाली देगा वो सीधा नर्क जाएगा, और जो मेरे गुरु की तारीफ करेगा स्वर्ग द्वार उसके लिए खुले हैं। ये गीतों में बुल्ले शाह की पंक्तियां। जब शादी थी तो बुल्ले शाह ने भी अपने मित्रों को निमंत्रण, जैसे परिवार में नियम होता है कि सब अपनी जान पहचान वालों को निमंत्रण भेजते हैं, तो बुल्ले शाह ने अपने गुरु को निमंत्रण भेजा, खुद लेके गया। गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तो नहीं आऊंगा लेकिन मेरा कोई प्रतिनिधि मैं जरूर भेजूंगा, कोई आएगा मेरी तरफ से। शादी के दिन उन्होंने अपने एक शिष्य को भेज दिया। अब शिष्य और फटे हाल था, गुरु तो था ही गरीब सीधा साधा आदमी माली। अपने एक शिष्य को भेज दिया, मैले कुचैले कपड़े, ना मुंह, ना सिर, ना पैर, ना बाल, ना कंघी, ना कुछ। अब बुल्ले शाह भी वहां पर, बुल्ले शाह के घर में लोग बड़ी बड़ी अच्छी पोशाकें पहन के आए हुए हैं, लोग बड़े सम्मानित लोग आए हैं, नगर के लोग आए हैं, समाज से लोग आए हैं। अब बीच में ये घुस गए महाराज अंटसंट। बुल्ले शाह भी नजर बचा गए, ठीक से उसको स्वागत नहीं किया, हल्का सा देख के ऐसे किनारे कर दिया। उसने बड़ा अपमानित महसूस किया, आके गुरु को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो गुरु ने कहा अच्छा, उसकी क्यारी का पानी तेरी क्यारी में मोड़ देते हैं। अब ये भी सांकेतिक हुआ। गुरु ने जब निकाल दिया, गुरु जब नाराज हो गया, तो उस समय की जो कविताएं हैं उसकी अद्भुत कविताएं, एक एक गीत को सुनते हैं, इतनी सादगी, इतनी सरलता, इतना विरह, इतना आंसू है उनमें। लाइन है, अब बुल्ले शाह कह रहा है असा मुंह कुछ नहीं कहना, मुंह से भी कुछ कह नहीं सकते, तेरे बूहे आ बैठा, तेरे द्वार के ऊपर आके बैठ जाएंगे, पाके अखा विच हंजुआं दा गहना, तेरे बूहे आ बैठ। आंखों में आंसू के गहने डाल लेंगे, तेरे द्वार पे आके बैठ जाएंगे। इसके आगे की पंक्तियां और बड़ी अद्भुत हैं। वो बुल्ले शाह की व्यथा को, बुल्ले शाह का जो अपने गुरु के प्रति प्रेम है उसको अभिव्यक्त करती। इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, सूक्ष्म विचार, उसका गुरु तो सीधा साधा आदमी था, मोटी बातें करता था, मोटी अनपढ़ा सभ्य व्यक्ति था। ये तो पूरा कल्चर, सिविलाइज, एवरी, तो ऐसा लगेगा कहाँ राम राम कहाँ टैंट है। गुरु टैंट लगेगा, वो राम राम लगेंगे। लेकिन वो जानता है कि गुरु राम राम है, मैं टैंट हूं। अब ये उसकी गुणवत्ता है शिष्य की। एक से एक कविता उसने लिखी है। उस दिन मैंने एक गाना सुनाया आपको ब्रदरहुड में, साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा मोड़, ये बुल्ले शाह का गीत है। रो रहा है, दिन रात रोता है कि हे प्यारे, कब अपना मुंह मेरी ओर करेगा, कब मेरे को वापस बुलाएगा, कब तेरे दर्शन होंगे, कब मैं तेरे चरणों के पास बैठूंगा, तेरी वाणी सुनूंगा। साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, ये बुल्ले शाह का गीत है, बुल्ले शाह की भावना। एक एक गीत। बुल्ले शाह अकेला व्यक्ति है जो साधक भी है और सिद्ध भी है, जो सिद्ध हो गया, लेकिन साधक पर क्या गुजरती है, जाना है, जिया है, भोगा है, तो उसकी भी चर्चा, इतनी मीठी चर्चा है। और प्रेम कथा है। हकीकत यह है कि कोई भी रास्ता हो, अगर गुरु शिष्य के बीच नाता है तो नाता तो एक ही हो सकता है, प्रेम का। और प्रेम अगर समर्पण ना बने तो प्रेम ने फिर अपनी
पराकाष्ठा नहीं छुई, अंततः उसको समर्पण हो जाना चाहिए। भक्त जो है वो समर्पण के रास्ते पे चलता है, भक्ति के रास्ते पे चलता है। उसको अपने पे श्रद्धा नहीं, गुरु पे श्रद्धा ज्यादा होती है। उसको ये दिखाई पड़ता रहता है कि करने से कुछ नहीं होता, करने से सिर्फ अहंकार निर्मित होता है, करने से अहंकार रिफाइंड होता है, मामला कुछ और है। और वो मामला जब अंतिम मामला जब तक ना हो जाए तब तक तो बात अधूरी की अधूरी है। अब जोश में अहंकार वश कोई भी पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकता है। ये सारी ध्यान साधना, सारी प्रक्रिया, जो भी साधना है, साधना का मतलब क्या है? कुछ करना, कुछ करके दिखाना। गुरु बताएगा ये कर दो, तुम वो भी कर दोगे, वो कहेगा ये कर दो, वो भी कर दोगे, वो कर दो, वो भी कर दोगे। और करते 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 तुम चढ़ जाओगे, चोटी पे पहुंच जाओगे। अब चोटी पे पहुंच के असली काम है, असली बात जो है वहां पर। पहले तो चोटी पर पहुंचो, वो भी दुसाध्य है, अति कठिन है, कोई विरला पहुंच पाता है, लेकिन वो विरलों में से कोई विरला छलांग लगा पाता है। अब वहां पर समर्पण चाहिए, वहां गुरु भक्ति चाहिए, गुरु श्रद्धा चाहिए। गुरु कहता मार छलांग, छलांग नहीं मार पाता आदमी, अटका रह जाता है। तब गुरु गलत लगने लगता है, तब गुरु के दोष दिखाई देने लगते हैं, तब गुरु नाराज होता है, तुम भी नाराज हो जाते, कहानी अधूरी रह जाती। कहानी पूरी तब होती है उस वक्त गुरु जो कहे, जो यार तनु कंधा वो करके वखा, बुल्ले शाह का गीत। जो यार तनु कंधा वो करके विखा, कि जो तेरा गुरु तुझे कहता है वो गीत उठा के ला, आज दिन है उसका। बुल्ले शाह अपने आप से बातें कर रहा है, वो कहता है कि जो गुरु कहता है वो करके दिखा, तू गुरु मत बन। लेकिन व्यक्ति चूंकि अपना सहारा लेके चला है, खुद से चला है, सारे पार करता गया है, हालांकि उसके पीछे भी गुरु का हाथ होता है। गुरु का है पहले से छोड़ दे तो छोड़ नहीं सकता व्यक्ति, तो गुरु ऐसी स्थिति में ला देता है कि जहां उसे छोड़ना ही पड़े, क्योंकि वहां से अब उतरना, अब यूं तो पहाड़ में दिखाई पड़ता है कि कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ गया है तो उतर भी जाएगा, लेकिन ये ऐसा पहाड़ है जिसके ऊपर तुम चढ़ तो जाते हो लेकिन उतरना नहीं आता, उतर सकते भी नहीं। एक ही बात हो सकती है, या तो फिसल जाओ तो हड्डी पसली टूट जाए, वापस स्क्वायर नंबर 1। और अगर श्रद्धा है और गुरु की बात मान ली और तो उड़ने लगते हैं, उसके बाद कोई खतरा। डर तभी लगता है जब तुम चोटी पे खड़े हो। चोटी पर पहले पहुंचाने का काम भी गुरु ही करता है, वो भी गुरु के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि कैसे पहाड़ पर चढ़ा जाता है, क्योंकि वो जानता है कि कहां कहां क्या क्या अवरोध है, कैसे कैसे आपके कहां, और डरता है तो मारता है गुरु पीछे से लात। इसका बहुत मन था हमारे मनीष का कि इस गीत का आप थोड़ा सा चर्चा करो। बुल्ले शाह कह रहे हैं कि बुल्ले शाह आखिर गुरु के पास गया क्यों था? बुल्ले शाह गुरु के पास इसलिए गया था कि वो परमात्मा को पाना चाहता, और उसको पता है कि परमात्मा बिना गुरु के मिलने वाला नहीं, और गुरु गया है रूठ। अब वो अपने आप से बातें करता है और कविताएं लिखता है, वो कहता है अगर तुझे परमात्मा को पाना है, परमात्मा को मनाना है, तो पहले तो गुरु को मना, गुरु को खुश कर, गुरु को राजी कर। रब मन जाता यार नो मनाना आता है, परमात्मा तो मान जाता है, परमात्मा का मतलब ही जो मान जाए।
लेकिन गुरु को मनाना, नच नच के यार मना लइए, वहां में लोग आखण भैड़ी कंजरी है। कहानी ये कहती है कि गुरु तो नाराज हो गया, अब वो क्यों मनाऊं, कैसे गुरु को खुश करूं। और गुरु ने आंख दिखा दी और मना कर दे। अब ये सारे रहस्य हैं, ये सभी लोग नहीं करते थे। ड्रामा करना हो, नाचना हो, किसी महफिल में जाना हो, वो अलग लोग होते थे, उनको कंजरी कहते हैं। तो कहता है कि नच नच के यार मना लिए, नाच नाच के गुरु को मना ले, भले कंजरी बनना पड़े। और कंजरी बना, वो जाके कंजरों के पास, कंजरियों के पास उसने नाच गाना सीखा। और उसको पता था कि उसको उसके गुरु फलां दिन फलाने मौके पर फलानी जगह पर आते हैं और ये सब देखते हैं, तमाशा कंजरी का नाच देखते हैं, गीत सुनते हैं। तो गुरु को खुश करने के लिए उसने नाच गाना सीखा। फिर पुरुष होके, पढ़ा लिखा होके, आज की बात नहीं हो रही, उस जमाने की बात हो रही है, स्त्रियों के कपड़े पहन के, कंजरी का वेश धारण करके, घूंघट निकाल के जाके गुरु को खुश करने के लिए गीत गा रहे, गाता रहा गीत। कहते हैं कि जो बजाने वाले थे वो थक गए, हार गए, उन्होंने बजाना बंद कर दिया, लेकिन उसने नाचना बंद नहीं किया। और गुरु पहले से ही पहचान गया कि ये बुल्ला है, वो भी बैठा है, उसको अभिव्यक्ति करने दे रहा है। और बुल्ला है कि नाचता जा रहा है, नाचता जा रहा है, नाचता जा रहा है, एक पर एक गीत सुनाता जा रहा है। और अंततः गुरु आके उसको गले लगाता है भरी सभा में। क्या दृश्य होगा, क्या बात होगी, और कैसी उसकी छाती में ठंड पड़ गई होगी। रब नू ते मनाना मुश्किल नहीं, दो लफ्ज पढ़ो रब मन जाना। परमात्मा को मनाना कुछ मुश्किल नहीं है, उसको दो शब्द कहो तो वो मान जाता है। महबूब जिन्हां दी ना होवे, नच नच के मनाना पैंदा है। कि जिनका महबूब रूठ जाता है, उनको नच नच के मनाना पड़ता है। ओदा रब नहीं रुसदा, रब दी सौ, उसका परमात्मा नहीं रूठता। परमात्मा की कसम खा के मैं कहता हूं, भाव देखो, ये भक्त के भाव है। ओदा रब नहीं रुसदा, रब दी सौ, जिन्हों यार मनाउण दा चज होवे, जिसे गुरु को मनाना आता है, उसका परमात्मा कभी रूठ ही नहीं सकता। मैं परमात्मा की कसम खा के कहता हूं। ओ वाट मके दी क्यों पावे, जिन्हों यार दे तकिया हाज होवे। उसको मक्के जाने की क्या जरूरत है, चक्कर मारने क्या जरूरत है, वहां परिक्रमा करने क्यों जाए, तीर्थ यात्रा को क्यों जाए। जिन्हों यार नु तकिया हज हो, जिसने गुरु को देख लिया उसका हज हो गया, उसकी तीर्थ यात्रा होगी। अब कुछ उसने, चूंकि वो पंजाबी नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता, लिखा है तो कहीं कहीं कुछ भूले हैं जो मैं भी पकड़ नहीं पाऊंगा। तेंदी लोड़ ना विरद विजो फियांदी, ना ही लंबिया नमाजा दा ना कम होते। कि वहां पर किसी तरह के अनुष्ठान जब तक की जरूरत नहीं है, ना ही लंबी लंबी नमाजें करने की जरूरत है। नमाज जब पढ़ते हैं तो मैंने सुना है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है, एक लंबी नमाज होती है, एक छोटी नमाज होती है, एक फुल होती है, एक शॉर्टकट होती है। तो जो ज्यादा धार्मिक लोग होते हैं वो लंबी लंबी नमाज करते हैं, जो काम काजी होते हैं, संसारी होते हैं, छोटी नमाज करते हैं। तो कहते हैं वहां पर लंबी नमाजें और जप और तप और अनुष्ठान और ध्यान और ये, इस सब की कोई जरूरत नहीं। नचना भी इबादत बन जाता, नाचना भी उपासना हो सकती है, इबादत हो सकती है। पर नचने का ये चज हो, अगर नाचने की अगर कला आती है। अब इसमें कला क्या, हिम्मत है। हिम्मत करके वो नाचने गए, इतनी प्रतिष्ठा सारी दांव पे लगा दी।
इश्क ने डरदा मौत कलों भावे सूली चढ़ना पै जावे। जब इश्क किसी से हो जाता है तो मौत का भी डर चला जाता है। इश्क अगर किया है, कभी छोटा मोटा भी प्रेम होता है, उसमें भी ऐसे क्षण निकल आते हैं कि जब जरा भी डर नहीं लगता, आदमी कुछ भी त्यागने को, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और ये तो परमात्मा से इश्क है। इश्क ने डरदा मौत को लो भावे सूली चढ़ना पै जावे। नच नच के यार मना लइए भावे कंजरी बढ़ना पै जावे। कि कंजरी भी अगर बढ़ना पड़े, माने कुछ भी करना पड़े, अधम से अधम काम करना पड़े, तो भी ये करने जैसा है। नाच नाच के भी गुरु को मना ही लेना चाहिए। यार मनने तो बिना रब नहीं हो मनना। अब जरा देखो, बुल्ले शाह के हृदय में घुस के देखो कि किस तरह की तरंगें चल रही, किस तरह के सोच विचार चल रहे। यहां आदमी छोटी सी बात नहीं सह पाता। छोटी सी बात होती है तो उसको लगता है आप बोले, उसको लगता है कहां फंस गया। ये भक्ति का मार्ग है। जैसे आदमी हर वक्त अंगारों पे चल रहा है। यार मनने तो बिना रब नहीं हो मनना। बुल्ले शाह कह रहा है कि अगर तेरा गुरु नहीं माना तो परमात्मा तेरे को मिलने वाला नहीं। तेरा यार बाजू किथे नहीं हो कम बनना, कि बिना गुरु के कहीं भी तेरा काम बनने वाला नहीं है। इतनी साफ उसकी दृष्टि है, इतनी साफ उसको दिखाई पड़ता है कि गुरु का क्या महत्व है, गुरु यानी क्या। औने किसे कम नहीं हो किते सजदे अदा के। किसी काम नहीं आएंगे। ये जो सजदे कर रहा है, ये जो झुक रहा है, ये जो बार बार नमस्कार कर रहा है, ये कहीं भी तेरे काम आने वाले नहीं है। रब मन जाना यार नु मनाना। सिर यार दे दवारे उत्ते धर ले तू। कि गुरु के जाके द्वार पे सिर को झुका दे। होवे यार जी में राजी होमे कर ले। जैसे भी गुरु राजी होता, जैसे भी होता, गुरु जैसे भी मान, अपने आप को समझा रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, अपने आप को ताकत दे रहा है, अपने आप को स्पष्टता दे रहा है कि बुल्ले शाह चूक मत, गलती मत कर, जा गुरु के द्वार पे जाके झुकता। जैसे भी वो मानता है, जैसे भी उसको मना। सिर यार दया कदमा विच वेक धर के। कि गुरु के चरणों में सिर को धर के तो देख, फिर तुझे कैसी शांति लगती है, कैसी प्रसन्नता लगती है, कैसा विश्राम लगता है, कैसी राहत लगती है, कैसी छाया लगती है। जे तू जितना ते प्यार विच वे करके। अगर तू जीतना चाहता है तो प्यार में हार जा। प्यार में जीतने की एक ही कला है कि तुम हार जाओ। लेकिन अहंकार तो ये चाहता नहीं। अहंकार तो जीतना चाहता है कि मैं ठीक हूं तू गलत है। लेकिन बुल्ले शाह को ये भ्रम नहीं है। वो कहता है जे तू जितना, अगर तुझे जीतना है तो प्यार विच वेख हार के। प्यार में तू हार जा। यार जो तेनू कहता वो करके दिखा। कि गुरु जो तुझे कहता है वो करके बता। गुरु का अर्थ है जो तुम्हारी गर्दन उतार दे। गुरु का अर्थ है जो तुम्हारी समझ को विदा कर दे। क्यों? क्योंकि वही बात है जिसको तुम समझ कह रहे हो, उसका दरवाजा बाहर खुलता है। गुरु जिसको समझ जानता है उसका दरवाजा भीतर खुलता है। परमात्मा भीतर है, दरवाजा भीतर खुलना चाहिए। तुम्हारी समझ बाहर खुलती है। जितना तुम्हारे पास ज्ञान है वो सब बाहर का है, वो अंदर पहुंचते ही नहीं। उसका तुम्हारे होने से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक हिस्से में है, वहीं पर
बैठा रहता है, वहीं बात करता रहता है, वहीं से वो भ्रम क्रिएट करता है कि मैं जानता हूं, और तुम तदात्म कर लेते। लेकिन बुल्ले शाह को भ्रम नहीं है। बुल्ले शाह जानता है, वो कहता है यार जो तेनू कहंदा वो करके दिखा, कि गुरु जो कहता है बस तुम उसको कर डालो। गम दुनिया दे तैथों मुख मोड़ लैनगे, कि सारी परेशानियां, सारे गम, सारे शिकवे तुझसे मुंह मोड़ लेंगे, दूर चले जाएंगे। तेरे सुतड़े नसीब वेखी जाग पाएंगे, जो तेरा जो सोया हुआ नसीब है, जो भाग्य है, वो जाग जाएगा। तेरी कित्ते जे सोना माफ कर दे खता, कि अगर वो प्यारा तेरी भूल को अगर माफ कर दे तो तेरा मंगल हो जाएगा। जे तू रब नू मनाना, पहले यार नू मना। रूसे यार नू मना ले जे तू पार लंघना, के रूठे हुए गुरु को मना ले अगर तुझे पार जाना है, उस पार जाना। गल यार वाली मन लोगों कोलो संग ना, कि गुरु की बात सुन, लोगों की बात मत सुन, लोगों का संग साथ मत दे। लोग तो तेरे को भटकाएंगे, क्यों, मतलब भटका ही रहते उसको, बुल्ले शाह को। परिवार वाले भी पीछे पड़े हुए हैं, दोस्त भी पीछे पड़े हुए हैं, सब जानने वाले पीछे पड़े हैं कि ये बुल्ला पागल हो गया, कर क्या रहा है। लेकिन बुल्ला अपने आप को कह रहा है कि तू लोगों के पीछे मत जा। भावे अट्टी मुलविक भावे कूक चरा। अब ये उस समय की रेफरेंस है कि अगर तुझे अपना व्यवसाय बेचना पड़े, अपनी कंपनी बेचनी पड़े, अपनी हट्टी बेचनी पड़े, दुकान बेचनी पड़े, घर मकान बेचना पड़े, या तुझे पशु चराने पड़े, क्योंकि यही उस वक्त के साधन थे। खेती बाड़ी थी, या छोटी मोटी कोई दुकान होती है, या लोग पशु चराते हैं। तेरे को अगर पशु चराने पड़े, तेरे को अपना माल सबाब बेचना पड़े, जो भी करना पड़े कर, रब मन जांदा रब नू मनाउणा औखा है। ਇਹ भेद इश्क ने खोले नहीं, ये दिल मैनू समझाउंदा है। जेड़े भूल जाते ने माही नू, वो डूब जाते, वो तरदे नहीं। जो गुरु को भूल जाते हैं वो डूब जाते हैं, जो गुरु को इग्नोर कर देते हैं उनकी सारी यात्रा चौपट हो जाती है। ये इश्क के भेद हैं। लेकिन उसका इश्क, उसका दिल उसको समझा रहा, वो इश्क के भेद उसके भीतर से, उसके हृदय से स्फूर्त हो के उसको बार बार सजा कर रहे हैं। बुल्ले शाह को सोने यार अगे कुछ उसने गलत सा लिखा है। सोने यार अगे इस सिर यार मिटाउणा आउंदा नहीं, फिर तोड़ दे तस्बीह तस्बीह नू तेन विरद पकाउणा आउंदा नहीं। अब वो लोग माला फेरते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं कि तुझे जाप करना नहीं आता, तू अपनी माला वाला तोड़ दे। अगर तुझे गुरु के आगे अपनी अकड़ को मिटाना नहीं आता, दिल देख के दिलबर माही नु, सुनना, दिल देख के दिलबर माही नु। जब हृदय दे ही दिया गुरु को, दिलबर को, अपने प्रेमी को, दिलों प्यार भुलाया जाऊंगा नहीं, फिर तुम कैसे प्यार को भुला दोगे जब दिल ही उसके हवाले कर दिया, जब हृदय ही उसके हवाले कर दिया, तो अब तुम कैसे उसको भूल सकते हो। सिर रख दे यार दे कदमा ते, मुड़ फेर उठाया। एक बार अगर उसके कदमों में सिर रख दिया तो फिर उठाने की क्या जरूरत है। अब उसको वहीं पड़ा रहना। जिन्ना यार नू मनाया लगे पार हंस के, जिन्होंने अपने गुरु को राजी रखा, जिनका गुरु रूठा नहीं, जिन पर गुरु की कृपा बनी रही, लगे पार हंस के, वो हंसते हंसते पार, उन्होंने मुक्ति पा ली, मोक्ष पा लिया, निर्वाण पा लिया, जो भी कहो। रूसे जिन्ना दा रोंदे वो विचाले फंस गए।
जिनका गुरु रूठ गया वो अब बैठ के पछता रहे, अब रो रहे हैं। पर साध का हाथ आया वेला हाथों न गवा, कि ये जो हाथ में अवसर आया हुआ है इसको अब हाथों से जाने मत दे। रब मन जाऊंदा यार नू मनाना औखा है। दिस इज द पोएम of Bulle Shah. Manish wanted that I should share with you all in both Hindi and English, because he loves also Bulle Shah, he loved the poem. That is why he transcribed from the original song. And there was today reference in it spontaneously. The flow came. So I was talking on this poem of Bulle Shah. Maybe next time I will explain you little what Bulle Shah is saying. In English also I will try. If it is. Sometime, it happens. Sometime it does not happen. हंसी चीज करम आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती है। हो जाए।